Hey sassy lady, this is Matri, एक social media marketer, एक mother and a simple yet sassy woman just like you. ये है Little Fixes podcast, आपकी evergreen audio lifestyle magazine. यहाँ मैं और मेरे guest शेयर करते हैं sweet, simple and practical ideas to help you in improving every aspect of your life. Career, fitness, mental health and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello Sassy Nari. Thank you for joining me today. I wish you an adventurous 2023. आपके साथ वही हो जो आपके लिए अच्छा हो. Happy New Year. तो आज मेरे साथ मेरी co-host है इधाया. And this is episode 101. Little Fixes is back after a 2-month break. A lot has happened because 2 months is a long time. To start with, 2022 was an exciting year and a year of learning. I worked with a life coach and a therapist, read a few books, and I will talk about them in another episode. बहुत कुछ सीखा, नए realizations हुए. The year was exciting, but not everything was shiny and bright. But I think ऐसा ही होता है, mixed bag रहता है, which is a good thing. My favorite memory of 2022 has to be the Udaipur trip with my besties Nikki, Preeti and Tripti. It was fun and yes, super crazy. I still smile thinking about it. In fact, I sometimes even start laughing out of nowhere. तो मेरा moment तो ये था. And Idhaya, what was your favorite moment of 2022? My favorite moment was playing with Avya, and I love her very much and I love to play with her. तो इधाया का फेवरेट मोमेंट था आव्या के साथ खेलना. आव्या उसकी क्लासमेट थी और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी इन जयपुर. तो इधाया मिसेस हर अ लॉट, इधाया लव्स हर अ लॉट. एंड इफ यू आस्क मी व्हाट डिडंट गो एज प्लान्ड, सो ऑनेस्टली इस साल के लिए मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था. आई जनरली डोंट प्लान थिंग्स, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं करती हूँ. शॉर्ट टर्म में भी डरते डरते करती हूँ कि अगर ये किया, ये नहीं हुआ तो क्या होगा. तो इस चीज़ पे भी मैं वर्क कर रही हूँ बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ अ लिटिल बेटर. बट येस, द टफेस्ट थिंग आई डिड इन 2022 वॉज लीविंग जयपुर. एक सिटी जहाँ पे आपने अपनी लाइफ बिल्ड कर ली हो, वो सब छोड़ के स्क्रैच से स्टार्ट करना आसान नहीं होता. तो नाउ आई एम अ रेजिडेंट ऑफ बैंगलोर. वी मूव्ड हियर ऑन 30th November. मेरे हस्बैंड की कंपनी ने उन्हें बैंगलोर बुला लिया एंड ऑनेस्टली मेरा मन नहीं था. But I had no excuse to stay back in Jaipur. My work is location independent and Idhaya is so young, तो उसकी schooling की भी problem नहीं थी. But फिर भी I was not ready for this change. Because it's in my nature to resist changes. And I always want to control the outcome of everything. In fact, my husband has been telling this to me since last 12 years. But I understood it only after my life coach and my therapist pointed that out. Husbands की बात वैसे भी कौन सुनता है. See, I had everything set in Jaipur. सब पता था. आप कहीं भी कितनी भी दूर जाना हो, 15 किलोमीटर्स भी जाना हो, तो भी आप 30-40 मिनट्स में पहुंच ही जाओगे. यहाँ पे you can't even think about that unless you are maybe on a highway. फ्रेंड्स थे, इधाया का स्कूल सेट था, लैंग्वेज सेट थी. तो सब कुछ बहुत कंफर्टेबली चल रहा था एंड लाइफ पुश्ड मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. मे बी ज़रूरी था फॉर न्यू लर्निंग्स. द थिंग इज कि आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस मूव. लेट्स सी वेयर वी गो विद इट. अगर अपनी न्यू लाइफ की बात करूँ इन अ न्यू सिटी, तो वी हैव गॉट एन अपार्टमेंट इन अ नाइस रेजिडेंशियल सोसाइटी जहाँ पे इधाया और मेरे लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं, क्लासेस हैं, वो सब प्रेमिसेस में ही है. लर्निंग का काफ़ी स्कोप है, सो बोथ ऑफ अस आर एंजॉइंग दैट. Idaya's school will start in June and she's at home till then, so she's learning everything she enjoys like art, dance, phonics and numbers जो मैंने ज्वाइन करवाया है. और नए फ्रेंड्स बनाने की बात करें तो there are some known people from my husband's company, but I'm yet to make friends. It's been just a month, तो ये भी होगा. I have been listening to some podcast episodes about making new friends because मेरे लिए friends बनाना आसान नहीं है. Because I feel awkward in reaching out, in keeping touch, small talk and whatnot. So also it's not easy adjusting here or maybe in any new place.
और जयपुर एक छोटा शहर था, वहाँ से आप एकदम से एक बड़ी जगह आ जाते हो, तो बहुत सारे और भी एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं. मे बी समडे आई विल टॉक अबाउट कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा. बट मुझे लगता है कि सब अच्छे से हो जाएगा. इदाया इज ऑल्सो मिसिंग हर लाइफ इन जयपुर, बट द गुड थिंग इज दैट शी इज लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ट्राइंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स. तो उसका नेचर ऐसा है कि जैसे वो पार्क में खेलने जाती है तो उसको जो भी बच्चे दिखते हैं सिमिलर एज ग्रुप के, उनके पास जाएगी, उनसे उनका नाम पूछेगी, बातें करेगी, उनकी एज ज़रूर पूछेगी बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी ओल्डर देन एनीवन आई थिंक. तो उसको बहुत मज़ा आता है. और ये जो उसके अंदर की क्वालिटी है आई थिंक ये मुझे सीखनी है उससे कि कैसे कॉन्फिडेंटली आप दूसरों के पास जाके उनसे बात कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो एक नया रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की, एक कनेक्शन बनाने की. जो पॉडकास्ट पे लगता है कि आई एम वेरी आउट गोइंग या टॉकेटिव, बट मेरा नेचर इस माइक के पीछे अलग है और रियल लाइफ में अलग है. तो आई थिंक ये जो चेंज है इट विल ऑल्सो इन सम वेज फोर्स मी टू चेंज दिस नेचर, दिस trait of mine. Maybe not completely change, but improve it. Now looking ahead, it's gonna be a busy year. I have some ideas, फिर चाहे वो मेरे सोशल मीडिया वर्क के बारे में हो या फिर लिटिल फिक्सेस के बारे में हो. तो पॉडकास्ट में I want to talk more about mental health this year, but I will also be talking about different aspects of women's physical health and about building a career you love. I don't have a clear plan yet. प्लान बनाना है लेकिन उसको कंट्रोल करने का ट्राई कम करना है, साथ में ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी होना है. मतलब कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कितनी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं जो मुझे एक साथ एडजस्ट करने की कोशिश करनी है. एंड दिस ईयर्स थीम फॉर मी इज गोइंग टू बी बीइंग मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कमिंग आउट ऑफ टाइम पॉवर्टी माइंडसेट. मुझे हमेशा लगता रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है. आई एम ऑलवेज इन अ हरी एंड रेयरली एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट. इस चीज़ पे वर्क करना है इस साल. तो लास्ट ईयर बट अ लॉट ऑफ लर्निंग और अब 2023 में एक्शन का टाइम है. रिजल्ट्स आने में शायद थोड़ा और वक्त लगेगा, बट आई हैव टू लर्न टू बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. तो मैं तो ये सब करने वाली हूँ इस साल में. बट इदाया मैम, व्हाट डू यू वांट टू डू इन 2023? I want to learn swimming, and my room is very organized and I like it and I don't sleep there. तो she has been listening to me talking about कि कैसे मुझे ज़्यादा organized होना है, तो she is saying कि my room is so organized. वो जो पूरे दिन मैं हूँ ना, मैं कहती रहती हूँ दाई ये सामान अंदर रख दो, ये सामान मत फैलाओ. तो that's why her room is a little more organized as compared to what it looked like in Jaipur. बट शी ऑल्सो मैंशन कि शी डजंट स्लीप हेयर. तो सी यहाँ पर क्या है, जयपुर में हम लोग के पास 2.5 BHK था, तो वी हैड अ सेपरेट स्टडी. यहाँ पे 2 BHK है. जो गेस्ट रूम है या जो इदाया का रूम है और जो मेरी स्टडी है वो सब एक ही रूम में है. तो इसलिए भी मुझे रहता है कि ये रूम अच्छा रहे जिससे कि मेरा काम करने में मन लगे और इदाया का पढ़ने में, खेलने में, सब चीज़ों में मन लगे. बट या थोड़ा क्या मतलब बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं एंड दिस एडजस्टमेंट इज़ वन ऑफ देम. बट द हाउस इज़ मच नाइसर देन व्हाट वी हैड इन जयपुर, तो वी आर एंजॉयिंग इट सो फार. So these were some of the updates I had for you regarding Little Fixes and regarding my own growth. I will talk more about my learnings from therapy and life in future episodes. I have a lot to share with you and hope to be there with you in your self-discovery and development. Keeping this episode super short because I just want to give you some snack for thought to start the year. इस साल बहुत सारी बातें करेंगे. In the next episode on 20th January, I will be joined by a guest to discuss a lesser discussed topic. So do subscribe to Little Fixes podcast on your podcast app जिससे कि आप वो एपिसोड या हमारा कोई भी एपिसोड मिस ना करें. What are your plans for 2023? What do you want to get more of in this year? Tell me on Instagram at Little Fixes podcast. You can also rate and review Little Fixes podcast on Spotify and Apple Podcast. So thank you for joining me today. अब मिलते हैं 20th January को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सासी रहो. बाय. बाय.